हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पिरामिड। हमने हमारे लास्ट वीडियो में देखा था कि इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स के पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशन देखी थी और साथ में देखा था कि उनके डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं, उनको किन बेसिस पे हम कैटेगराइज कर सकते हैं, उनके कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, टर्म्स क्या होते हैं, डिग्री क्या होती है, ये सब हमने थ्योरेटिकली देखा था। आज के वीडियो में हम इसको कंटिन्यू करते हुए कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से समझेंगे कि लीनियर पॉलिनोमियल्स को फॉर्म कैसे करते हैं, उनके एक्सप्रेशंस कैसे दिखते हैं और उनमें हम उनकी टर्म्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो, जहां पर हम कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से इनको समझेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। एक छोटा सा एग्जाम्पल है आपका कि राजू वेंट टू अ शॉप वेयर देयर वर सील्ड बॉक्सेस ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑन सेल। ठीक है, सपोज you go to the shop and you want to purchase something, so the shop owner told him कि red boxes have 5 pens each and blue boxes have 6 pencils. Okay, means there are two different types of boxes, they are sealed pack, red box and blue box. Correct? Now you are able to understand. On a shop there are two different types of boxes, red box, blue box. Red box is having 5 pens, correct? And blue box is having 6 pencils. Now you want to purchase both of them, but you don't know how much you have to purchase. So suppose you purchase X red boxes and Y blue boxes, correct? X and Y can be anything, like you purchase 2 red boxes and 3 blue boxes, or anything you have purchased. So number of boxes you have purchased, red boxes is X and blue boxes is Y. Now you have to find out the total quantity of pens and pencils you have purchased. And since you purchased this much of the items, so what your shopkeepers do, he will give you 2 extra pens for free. Okay, so you get 2 pens for free. Now you have to find how many you got all together. Correct? So what you are doing, we are going to write an algebraic expression, what is happening there. So how many pens you have purchased, total pen, how many you have purchased, you have purchased X boxes and each box is having 5 pens. So you are having total number of 5X pens, correct? And total pencil, how many you purchased? Total pencil, you purchased Y boxes and each box is having 6. So you are having 6 Y pencils, correct? Because total number, how you will find number of boxes into each box is having how many. So each box is having 5. So you purchase 5 into X. Correct? So this is your total number of pen. This is total number of pencil. And plus 2 more pencils you are getting free. So first you have to find the total quantity of pens and pencil. The total quantity of pen and pencil is 5X plus 6Y. This is your pen. This is your pencil. This is when, ये क्वांटिटी कब है आपकी, जब आपको जो शॉपकीपर है उसने कोई भी चीज फ्री नहीं दी है, ये बिफोर दैट है, ये टोटल क्वांटिटी. तो दिस इज द आंसर फॉर दिस. नाउ आल्सो, नाउ अब क्या हुआ, आपके जो शॉपकीपर था उसने कहा कि आपने इतना सारा सामान लिया है तो यू विल टेक 2 पेन फ्री. सो नाउ डू यू आर हैविंग टोटल नंबर ऑफ पेन एंड पेंसिल, हाउ मच, 5X plus 6Y plus 2. Correct? This is your pen which you purchased. This is the pencil which you purchased, and 2 is what you got free. Correct? Till here it is clear. अब हम इसमें क्या देखेंगे कि हमारा जो एक्सप्रेशन है 5X plus 6Y plus 2, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, तो नंबर ऑफ टर्म्स है हमारे पास 3, 5X, 6Y and 2. करेक्ट? इसमें जब हम बात करेंगे कि टर्म्स कौन कौन सी है, तो 5X, 6Y and 2.
अब यहाँ पर जब कोफिशिएंट्स की बात करेंगे, वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स क्या है, तो x का कोफिशिएंट क्या है 5, y का कोफिशिएंट है 6 और 2 क्या है, 2 आपका कांस्टेंट नंबर है। हम बात करेंगे कि इसकी डिग्री क्या है पॉलिनोमियल की, तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 1। क्यों? क्योंकि x की पावर 1, y की पावर 1 मीन्स हाईएस्ट डिग्री ऑफ योर variable is 1. Since its degree is 1, power is 1, so degree of your this algebraic expression it is 1. Clear here? हम one more example देखते हैं कि हमारे लिए expressions किस तरीके से फॉर्म होते हैं और वो किस तरीके से काम करते हैं। तो सी यहाँ पर क्या है, आपके पास एक बहुत प्यारा सा फील्ड है। ओके, ये एक फील्ड है इनसाइड, ये उसकी लेंथ है और ये उसकी विड्थ है। आपको क्या करना है, यू हैव टू मेक अ फेंसिंग अराउंड द योर फील्ड। तो जब आप इसकी फेंसिंग बना रहे हैं तो आप 2 टाइप्स की फेंसिंग बना रहे हैं। आप लेंथ जो है आपकी, ये लेंथ, इसके अक्रॉस वायर की फेंसिंग बना रहे हैं एंड जो आपकी विड्थ है इसके अक्रॉस आप क्या कर रहे हैं, वुडन की फेंसिंग बना रहे हैं। तो जो चार्जेस लगते हैं, व्हाट आर द चार्जेस? A wire fence is to be laid along the length costing 100 per meter. Means जो लेंथ के अकॉर्डिंग है उसमें कितना है, ₹100 पर मीटर आपको चार्ज लग रहा है। एंड जो विड्थ के अकॉर्डिंग है उसमें आपको लग रहा है ₹80 पर मीटर। करेक्ट? उसके बाद क्या कर रहे हैं, आप है ना इसके अंदर स्पेशल सीड्स को भी सोन कर रहे हैं, मतलब आप बीज बो रहे हैं जिसकी कॉस्ट क्या है, 50 पर स्क्वायर मीटर। So what will be the total cost incurred? आपको टोटल कॉस्ट बैठेगी वो आपको फाइंड करना है। तो देखिए टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी आपकी, इसकी लेंथ के अकॉर्डिंग कितनी हो जाएगी, टोटल लेंथ कितनी हो चुकी है इसकी, टोटल लेंथ है इसकी 2L बिकॉज रेक्टेंगल है, L प्लस L। टोटल विड्थ कितनी है इसकी 2W, करेक्ट, W इंटू W। अब आपकी टोटल कॉस्ट इसके अकॉर्डिंग कितनी आ जाएगी, लेंथ के अकॉर्डिंग, जो भी आपकी टोटल लेंथ इंटू कॉस्ट पर मीटर। कॉस्ट पर मीटर कितनी है आपकी 100, करेक्ट। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका लेंथ के अकॉर्डिंग कॉस्ट कितनी आ जाएगी 2L इंटू 100। विड्थ के अकॉर्डिंग कितनी कॉस्ट आएगी आपकी, टोटल विड्थ कितनी है 2W इंटू कितनी आ जाएगी 80, करेक्ट। और स्पेशल सीड्स जो हुए उसकी कितनी आ जाएगी, तो सीड्स जो हुए हैं वो किस में हुए हैं आपके एरिया में। तो एरिया क्या होता है आपका किसी भी रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू विड्थ, करेक्ट। तो यहाँ पर हो जाएगा सीड के लिए कितनी हो जाएगी, लेंथ इंटू विड्थ जो टोटल एरिया है इंटू कितनी कॉस्ट है इसकी 50। तो व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट इनकर्ड। ये तो हमने इंडिविजुअल कैलकुलेट करी। तो टोटल कॉस्ट विल बी इट इज इक्वल्स टू 12 इंटू 100 कितना हो जाएगा 200L प्लस 160W प्लस 50L इंटू W, करेक्ट। अब हम देख सकते हैं कि हमारे इसकी कितने टर्म्स हैं, कितनी कोफिशिएंट्स हैं। तो ये देखिए इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 3, 200L 160W प्लस 50L इंटू W। तो हमारे पास यहाँ 3 टर्म्स है। कोफिशिएंट्स की बात करें तो हमारे पास जो L है इसके कोफिशिएंट्स कितने हैं, L का कोफिशिएंट है आपके पास 200, W का कोफिशिएंट है 160 और LW का कोफिशिएंट है 50, करेक्ट। व्हाट इज द डिग्री ऑफ योर पॉलिनोमियल। देखिए L की पावर 1 है, W की पावर 1 है, बट इस टर्म में अगर आप देखेंगे तो इसमें 2 वेरिएबल्स है और दोनों की कितनी है 1 1। तो हाईएस्ट पावर कितनी हो जाएगी इसकी, हाईएस्ट डिग्री 2, क्योंकि L की 1 W की 1, तो ये 2 को रिप्रेजेंट करता है। तो आपकी इसकी जो डिग्री हो जाएगी वो हो जाएगी 2, करेक्ट। एनी डाउट, इजी। वन मोर एग्जाम्पल यू वांट टू सी। चलो हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। A wire of length 40 centimeter is bent in 2 different ways to form a rectangle. ये आपका रेक्टेंगल है,
इस रेक्टेंगल को फॉर्म करने के लिए हमने क्या यूज किया है, 40 सेंटीमीटर की वायर। तो हम 2 डिफरेंट वेज में इसको किस तरीके से कर सकते हैं, नॉट इन 2 डिफरेंट वेज बल्कि बहुत सारे डिफरेंट वेज में हम हमारे 40 सेंटीमीटर वायर को किस तरीके से यूज करें कि हमें डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के रेक्टेंगल्स मिले। तो उसके लिए देखिए, रेक्टेंगल है तो इसका मतलब इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, पेरीमीटर कितना होता है हमारे रेक्टेंगल का, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ L प्लस B, करेक्ट। दिस इज योर लेंथ, दिस इज आल्सो लेंथ, दिस इज योर ब्रेड्थ, तो ट्वाइस ऑफ L प्लस ट्वाइस ऑफ B, तो ट्वाइस ऑफ L प्लस B, ये कितना हो जाएगा इसका पूरे का पेरीमीटर 40, क्योंकि हमारा जो वायर है उसकी लेंथ कितनी है 40। So now you are having L plus B, it is equals to 20, correct? 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, means half of the perimeter is 20. This is clear. We are having a one relation that L plus B, it is equals to 20. Now both are dependable. You can write length is equals to 20 minus B, means you are writing L in the form of breadth. Means your length will depend upon your width of your rectangle. Same way, if you want, you can write B is equals to 20 minus L. Anything you can write. So suppose let breadth of the rectangle is X. It is X meters. If it is X meters, then what is the length? Length will be 20 minus X, correct? This is 20 minus X. Means X and 20 minus X. This is B and this is L. Now you can form different types of rectangles. How you can form? If you change X, L will automatically change. If you put L is equals to 5, so this will be 5, then this will be your 15. 20 minus 5, 15. If you put this equals to 7, then this will be your 14, correct? 20 minus 7, how much it will come? 13, correct? So in this way, you can find different ways to form rectangles using your 40 centimeter wire. Any doubt? अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। चलिए, इसी के बेसिस पे एक हमारी छोटी सी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज सेट 2.1, बहुत छोटी सी है। फाइंड द डिग्रीज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। ये जो भी हमें पॉलिनोमियल्स दिए हैं, हमें इनकी डिग्री फाइंड करनी है। तो फर्स्ट 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? इसकी डिग्री हो जाएगी 2। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो हाईएस्ट पावर है x की वो कितनी है? 2। यहाँ पर सेकंड में कितना हो जाएगा? y क्यूब प्लस 2y माइनस 1। तो यहाँ पर जो है हाईएस्ट पावर कितनी है? 3। तो इसकी डिग्री हो जाएगी 3, करेक्ट। 9 थर्ड माइनस 9, माइनस 9 है, इसका मतलब ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? 0। तो इसकी डिग्री हो जाएगी 0, करेक्ट। 4z माइनस 3, यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री कितनी है? हाईएस्ट पावर कितनी है z की? 1। तो इसकी डिग्री हो गई 1, करेक्ट। नाउ राइट पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1 2 3। तो आपको 1 2 3 डिग्री के पॉलिनोमियल्स लिखने, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। डिग्री 1 का लिखना है, मतलब हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए? 3x प्लस 2, करेक्ट। यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। नाउ हमें लिखना है डिग्री 2। तो डिग्री 2 को कैसे लिखेंगे? 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, करेक्ट। वी कैन राइट, बिकॉज यहाँ पर x की हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 2। अब हाईएस्ट डिग्री अगर 3 लिखना है तो हम लिख सकते हैं 4x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3। एनी डाउट? आप कुछ भी लिख सकते हैं, इसके बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहें उसको लिख सकते हैं, सारे आंसर्स करेक्ट होंगे। व्हाट आर द कोफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर एंड x क्यूब इन द पॉलिनोमियल? गिवन पॉलिनोमियल में
आपको एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब के क्या निकालना है, कोफिशिएंट। तो पहले एक्स स्क्वायर देखेंगे कहाँ है, ये है आपका एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर है 6x स्क्वायर, तो इसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा 6, करेक्ट। एक्स क्यूब को देखेंगे तो एक्स क्यूब का टर्म क्या है, -3x क्यूब। तो इसका हमारे पास कितना हो जाएगा कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट हो जाएगा हमारे पास -3। एनी डाउट? बहुत इजी सी एक्सरसाइज है। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ z इन द पॉलिनोमियल 4z³ + 5z² - 11। तो आप देखेंगे कि हमें इस गिवन पॉलिनोमियल में z की पावर 1 वाला तो कोई टर्म है ही नहीं और z की पावर 1 वाला कोई टर्म है ही नहीं, इसका मतलब उसका कोफिशिएंट क्या हो गया, 0। Now, what is the constant term of the polynomial 9x³ + 5x² - 8x - 10? तो इसमें जो कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म वो है जिसमें हमारे पास कोई भी वेरिएबल नहीं है। तो -10 हमारा एक ऐसा टर्म है जहां पर हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल नहीं है, तो हमारा कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा, -10। So recall that polynomials of degree 1 are called linear polynomials. तो जो भी डिग्री 1 के पॉलिनोमियल्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल्स। तो इस चैप्टर में हम लीनियर पॉलिनोमियल्स को पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे लीनियर पॉलिनोमियल के और उसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे और क्या रिजल्ट निकलता है, क्या पैटर्न है, हम उसको भी अच्छे से समझेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। Stay connected.